This topic is about CSF, cerebrospinal fluid, its formation, its circulation, and its drainage. Okay, CSF is it's sort of like replacement of lymph in the nervous tissue. You don't have a lymph like you have no arteries, veins, and lymphatics. Here you don't have lymphatics. So that is why you have this. आवाज नहीं आ रही. अब कुछ बेटर हुआ है क्षितिज? आवाज बेटर हो गई? Okay. So it's a replacement for lymph. It's a modified tissue fluid, which you'll get to know what the differences are. First of all, let's observe from where it and how this CSF is being formed. This is a prototype diagram, like, telling all the layers from outside to inside. So outside you have yesterday being taught about the meninges. So this is the dura mater on outside. It's a prototype diagram, like, just to tell, from outside to inside, the nervous tissues, what are the layers. So one thing you're seeing is the dura mater. Hold on, the students still arriving. Okay, so meninges, as I told you, this dura mater splits at certain places into its endosteal and meningeal layer to form dural venous sinuses. Then you have this arachnoid matter underneath. And this arachnoid matter, that it forms villi, arachnoid granulations. And this arachnoid villi and granulations, below to this is subarachnoid space. This is the subarachnoid space where you find the cerebral arteries and cerebral veins. Got it? So this is the subarachnoid space. And CSF is found here, circulating in the subarachnoid space. So from here, CSF is drained through these arachnoid villi and granulations, which of course you can see will pierce the subdural space, then the meningeal layer of the dura, and will drain into the dural venous sinuses. The other thing which was perforating the subdural space will be the cerebral veins, because cerebral veins also drain their blood into the dural venous sinuses. Then you seeing is this dotted line. This dotted line is the pia mater, which is dipping into the sulci of the nervous tissue of the brain. Then this here, it is the brain or the nervous tissue with sulci and gyri. Then within the nervous tissue or the CNS, you also have another cavity, and that's called the ventricular cavity. So this is the ventricular cavity. Clear ho gayi baat? Now what happens is, dhyan se sunna, kyunki these are the pia matter which goes into the sulci. So at certain places in the CNS, you will find that this nervous tissue is very thinned out. This nervous tissue becomes very thinned out. So what happens is that pia matter, the inner lining of the ventricular system is formed by brush border epithelium, which also is ciliated. इसके बारे में हमने जो cellular architecture पढ़ाया था nervous tissue का. Then I told you about the ependymal cells. They are brush border having a cilia. तो called tall columnar ciliated epithelium होती है with brush border, which lines the ventricular cavity. So if this nervous tissue becomes thinned out, so what will happen? This pia mater will meet the ependyma. समझ में आ गया मैम? Pia mater meets the ependyma. Now, this is thylakoid. The folds of pia mater along with the ependyma is thylakoidea, and at certain places these thylakoidea
are invaginated by the blood vessels, the minute capillary plexus, the tuft of capillaries which invaginate into the tylochoroidea forms choroid plexus. तो choroid plexus actually बना कैसे है? Choroid plexus means the three things you'll remember about choroid plexus is the tuft of capillaries covered by pia and the secretive ependyma. The ependyma otherwise is not secretive, but the part of the ependyma which lines the choroid plexus becomes secretory. ठीक? So this is the CSF synthesizing apparatus, choroid plexus कहते हैं. ठीक? Then CSF, after being formed here, it gets collected here. Total amount of CSF normally in an adult body is around 150 ml. 150 ml, you can imagine जो एक फ्रूटी का पैक आता है, टेट्रा पैक, आई थिंक वो उसके अराउंड इतना ml होता है पूरी बॉडी में. Then ventricular system has outlets as well, because ventricular system जो होता है वो CNS के within होता है. It has to come out to the subarachnoid space then. So there are openings. You can see this arrow here. So that means there are certain openings in the ventricular system, especially in the roof of the fourth ventricle, where you find three openings. The medial one is foramen of Magendie, and the lateral two are foramen of Luschka. So from there, this CSF comes out here in the subarachnoid space, and then in the subarachnoid space, it regurgitates, it circulates, bathing the nervous tissue from outside. And then, you know, when it bathes, it of course provides nutrition also, and it collects the metabolites. जो lymphatics वाला काम है वो तकरीबन वही है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी यानी कि because of blood brain barrier, blood doesn't comes in contact with the neurons, but CSF comes in contact with the neurons. So CSF circulates in the ventricular system as well as in the subarachnoid space, and bathing the cells from outside, collecting the metabolites and refreshing this with glucose and oxygen. Then it gets circulated and reaches, remember, the dural venous sinuses in the cranial cavity. Through those arachnoid villi granulations, it is drained out into the dural venous sinuses. ठीक? तो इसका मतलब है कि CSF बनता कहाँ से है? CSF बनता तो है choroid plexus से mainly, and mainly अगर I told you about the ventricles. एक बार ये भी पूछा है, how many ventricles are there in CNS? So there are two lateral ventricles within the two cerebral hemispheres. Yes, Osama, 6 I told you. Good, you know that. Then the two lateral ventricles join to form the third ventricle, which is the cavity of thalamus-encephalon or the diencephalon, which communicates through the cerebral aqueduct to the fourth ventricle. Then this continues the central canal of the spinal cord, and in the conus medullaris, right? In the conus medullaris it again dilates there, and that is called terminal cistern. And cistern तो नहीं है ये, that's actually यहाँ ventricles की बात कर रहे हैं. It becomes dilated in the conus medullaris, and one you find is between the two septum pellucidum, when the two cerebral hemispheres are approximated, they're connected by corpus callosum, and on either sides of the thalamus, on the medial to the thalamus, there's there is this thin plate called septum pellucidum. When they approximate, there is this ventricular cavity formed called the fifth ventricle. So including that and the terminal portion, you find that it comes to be 6 ventricles. So CSF is formed here mainly in the, याद करना सबसे ज़्यादा जो CSF बनता है वो lateral ventricles से बनता है, but it is also formed in the third and the fourth ventricle as well. Or some amount of CSF is also formed from the capillaries in the subarachnoid space. ठीक है? तो ये जो capillaries हैं यहाँ पे, it's believed that some amount of CSF is oozes out from this also,
सो कंट्रीब्यूशन यानी कि अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ कोराइड अपार्ट फ्रॉम कोराइड प्लेक्सस सीएसएफ इज आल्सो माइन्यूट अमाउंट में, मतलब एक ऑप्शन के तौर पे याद कर सकते हो कि रूल आउट करना नहीं है इस बात को कि देयर इज आल्सो सीएसएफ बीइंग फॉर्म फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ऑन आउटसाइड, आई मीन फ्रॉम द सेरेब्रल वेसल्स, ठीक है, माइन्यूट ब्रांचेस फ्रॉम द सेरेब्रल वेसल्स। ओके, सो ये एक प्रोटोटाइप डायग्राम था, आउटसाइड टू इनसाइड ऑल द लेयर्स, यू नो हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग सर्कुलेटेड एंड हाउ इट इज बीइंग टर्मिनेटेड। देन फिर वेटिंग रूम में अभी तक आ रहे हैं बार बार। ओके, तो एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस के बारे में देखते हैं। एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस मींस द ड्रेनिंग apparatus. These are the two cerebral hemispheres with the white matter, and this is the cerebral cortex with the sulcus and gyri. Then you have this pia matter which goes into the sulci. There is subarachnoid space. This is dura, the meningeal layer of the dura, which folds itself to form the falx cerebri. Then अभी भी स्टूडेंट्स आए जा रहे हैं, स्टिल ज्वाइनिंग। दिस इज द ड्यूरल वेनस साइनसेस एंड ये एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस हैं जहां से सबरेक्नॉइड स्पेस से सीएसएफ इज बीइंग ड्रेन्ड। द सेम थिंग हैज बीन शोन हियर आल्सो। ये सबरेक्नॉइड स्पेस से विलाई है कहीं पे, ये टफ पेडंकुलेटेड टफ्ट्स होते हैं जिनको हम एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस कहते हैं। और ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख गई, वो ये है कि ये जो पेडंकुलेटेड टफ्ट्स होते हैं ये अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। कैन यू सी, दिस इज द बोन, द एंडोस यानी इनर टेबल ऑफ द cranial vault. So because of these arachnoid granulations, if you see the inside of the cranium on either side of the sagittal suture, you will find some impressions, यानी तो वो impressions जो पड़ रहे हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं, like you know small small engraved dots, that is because of the arachnoid granulations. और otherwise जो cranial vault की inner table पे streaks दिखती हैं irregular सी, those are because of, वो किसकी वजह से दिखती हैं, veins. Very good, they are meningeal veins in the epidural space. So अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो ये क्या है, ये ब्रेन टिश्यू है रेड से, एंड दिस इज अ सल्काई. सो pia matter, as you know, it dips into the sulci, and this is arachnoid matter which forms a pedunculated tuft, and this is called arachnoid granulation. So CSF is floating here, like circulating here in the subarachnoid space, but CSF will also dip down here also into the sulci, right? क्योंकि pia matter is dipping into the sulci. साथ साथ क्या होगा, subarachnoid space में blood vessels होती हैं, and as I said कि blood vessels when they enter the gray matter or the white matter, they carry the sheath of pia matter along with it. So ये CSF भी अंदर जाएगा, ठीक है, एंड इसी वजह से कहते हैं कि CSF comes in contact with the neurons but not the blood. Then you have dura matter, and look here, this is the endothelium lining in the dural venous sinuses, जिसकी वजह से यहाँ से ये CSF in the pedunculated tufts, it's get absorbed into the dural venous sinuses, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक ओपनिंग, यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यू हैव अ सेल्यूलर लाइनिंग हियर ड्यूरल वेनस साइनसेस पे, जहाँ पे ये पेडंकुलेटेड टफ्स ग्रैनुलेशंस खुलते हैं, तो वहां पे जो ड्यूरल वेनस साइनस की लाइनिंग है, रिमेंबर दैट ड्यूरल वेनस साइनस इज जस्ट नॉट, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एंडोस्टियलर लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में जो कैविटी है, दैट इज द ड्यूरल वेनस साइनसेस, ऑफ कोर्स, बट बिकॉज यू नो इट्स अ फाइब्रस, डेंस फाइब्रस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू pia matter. सो ब्लड इसमें सस्टेन कैसे रहेगा, इसकी इनर लाइनिंग पे याद रखना, देयर इज आल्सो एन एंडोथेलियल लाइनिंग, जस्ट लाइक अ वेन, अ डायलेटेड वेन। तो इस वजह से देयर इज आल्सो एन एंडोथेलियल लाइनिंग। तो ये एंडोथेलियल लाइनिंग इसको कवर करेगी ग्रैनुलेशंस को। सो देयर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से जो CSF वापस जाएगा ब्लड वेसल सर्कुलेशन में, ठीक।
ये तुमको यहाँ दिखा दिया गया है कि टोटल सर्कुलेशन, वेरी शॉर्ट में रिवीजन के लिए, कि लेटरल वेंट्रिकल्स में बनेगा ये सीएसएफ। फिर फोरामेन ऑफ मोनरो होता है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, थ्रू दैट इट रीचेस द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट से आएगा फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से इट विल ओपन थ्रू मीडियन aperture, that is magenta, and the two lateral foramen, the luschka. From there it circulates into the subarachnoid space, and through the villi and granulations it is drained into the dural venous sinuses. Apart from that, continues into the central canal of the spinal cord. ये central circulation hai, and this is the peripheral circulation. That means your brain and CSF, the specific gravity is nearly the same. As I told you in the beginning, that brain is around 1.5 kg, but CSF being the specific gravity is somewhat same, close to the nervous tissue. So what happens is that the brain, the weight of the brain is around 50 grams. Yes, so it makes it so light. And apart from that, functions of CSF, otherwise वैसे तो फिजियोलॉजी का पार्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी फिजियोलॉजी में, लेकिन मैकेनिकली यू कैन इमेजिन कि अंदर भी फ्लूइड है, बाहर भी फ्लूइड है, so it is sort of floating. The brain is actually said that it is floating in the CSF. So इससे एक एडवांटेज ये है कि एक कुशन इफेक्ट मिलता है, क्योंकि देयर आर ब्लड वेसल्स ऑन आउटसाइड इन द सबअरेक्नॉइड स्पेस, तो वो ब्लड वेसल्स इतना वेट है, एंड स्पेशली देयर आर लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो इंफीरियर एस्पेक्ट है, बेस ऑफ द ब्रेन, वहां पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं। सर्कल ऑफ विलिस नाम सुना होगा, वो भी वहीं पे होता है, तो उसकी वजह से जो वेट है उससे वो वेसल्स कंप्रेस नहीं होती, बिकॉज देयर इज दैट प्रोवाइड्स बॉयंसी। तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, कुशन इफेक्ट कर रहा है, प्लस मैंने भी बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, राइट, एंड दैट ब्रेन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी एनॉक्सिया जो है, और ये जो ग्लूकोज है उसकी वजह से कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अगर है तो 5 मिनट्स इज more than enough. 3 to 5 minutes के बाद there will be death. After 3 minutes there will be irreversible changes in the nervous tissue if there is complete absence of glucose and oxygen. तो ये वाला जो काम है ये ट्रांसपोर्ट का, प्लस इसमें जो मेटाबोलाइट्स निकलते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करता है सीएसएफ, ड्रेन कर देता है सबअरेक्नॉइड स्पेस में। ये डायग्राम भी है, जितने डायग्राम रिपीट कर करके देख लोगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि ये जो रेड कलर से, हैव यू सीन दिस रेड कलर थिंग, दिस इज कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस, this is actually the lateral ventricle. Can you see the shape of the lateral ventricle? So lateral ventricle has 3 horns. Can you see? The anterior horn is this, the inferior horn is this, and the posterior horn is this. ठीक है, एंड दिस इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है काफी बड़ी सी है, इसमें अंदर कोरॉइड प्लेक्सस दिखाया है रेड कलर से, यहां से सीएसएफ बन रहा है, मेजर अमाउंट ऑफ सीएसएफ इज फॉर्म्ड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स। देन दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, यहां से ये सीएसएफ आ रहा है किसमें, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से ये एक्विडक्ट के थ्रू मिड ब्रेन क्रॉस करेगा और आ जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से ये वैसे तो ये नीचे सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यू करेगा, बट ऑन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ये एरोज दिख रहे हैं, यहाँ से ये मेजेंडा एंड लुस्का के फोरामेंस के थ्रू इट विल रीच आउट इन द सबअरेक्नॉइड स्पेस। अब यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगा इन द सबअरेक्नॉइड स्पेस both the way। पीछे ये सिस्टर्न कौन सा है, दिस इज द लार्जेस्ट सिस्टर्न ऑफ सीएसएफ एंड दिस इज cerebellomedullary cistern, the cisterna magna. Yes, this is cisterna pontis, this is interpetuncular cistern। तो इससे भी सर्कुलेट होता हुआ ये ऊपर पहुंचेगा, और ये दिख रहा है ये है arachnoid villi and granulations, जिससे ये ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन करेगा। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, तो वो भी सुपीरियर सजाइटल साइनस,
यू नो जो सजाइटल सूचर के नीचे होता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस, मीडियन अनपेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस है। तो इनफैक्ट द लार्जेस्ट ड्यूरल वेनस साइनस वही है, वहीं जाके ये सीएसएफ ड्रेन हो जाता है। इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, ये है, देखो पहले तो ये कोरॉइड प्लेक्सस है, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो कोरॉइड प्लेक्सस है थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल का है, ये थर्ड वेंट्रिकल का, दे एरोज दे हैव पॉइंटेड आउट। तो ये इस तरह से ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के होते हुए यहाँ पे भी देखो रेड कलर से कोरॉइड प्लेक्सस दिख रहा है, दिस द कोरॉइड प्लेक्सस द फोर्थ वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल में आ गया। फिर यहाँ से ये सबसे आई मीन यू नो जो बर्स्टिंग ऑफ यानी कि सीएसएफ अगर सेंट्रल कैविटी से कहीं बर्स्ट कर रहा है तो वो है फोर्थ वेंट्रिकल, यानी कि सेंट्रल कैविटी से सब अरेक्नॉइड स्पेस में आने का जो रास्ता है दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल, राइट, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल में ही ये तीनों फोरामेन होते हैं, तो इसलिए सब सीएसएफ यहीं से आता है। सिस्टर्नम मैग्ना में एक तरह का पंप लगा हुआ है जहां से सारा सेंट्रल कैविटी से सीएसएफ इसमें आता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, यहाँ से इट गेट सर्कुलेटेड और पहले तो ये इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में जाएगा ऑब्वियसली, रिमेंबर दिस इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई, कल बताया था। तो ये इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट को बेथ करेगा, फिर ये सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में जाएगा, इसी तरह से आगे आ जाएगा सिस्टर्नम पॉन्टिस में, इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में जाएगा और फिर ये दोनों तरफ से पूरी तरफ से यानी सुप्रोलेटल सरफेस ऑफ द ब्रेन को बेथ करेगा और फिर ये अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस के थ्रू ये जाके ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वही जूम करके दिखाया है, दिस इज द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल और इसमें ये दिखाया है कि ये ब्लड वेसल्स होती है, जैसे मैंने बताया था ब्लड वेसल इफ कवर्ड बाय पाया मैटर एंड आउटसाइड टू दिस इज द secretive epithelium of the ependyma, this is ependymal cells, these are brush border cells, ठीक, so this structure is called choroid plexus। इसमें एक चीज और दिखा दी गई है, जिस तरह से मैंने बताया था कि synthesizing apparatus is choroid plexus mainly, but sometimes it has also been seen that minor amount of CSF is found from the cerebral minute blood vessels from the cerebral vessels, ठीक। इसी तरह एक छोटा सा ऑप्शन ये भी है ड्रेनेज को लेकर के कि most of the CSF of course is drained in through the arachnoid villi and granulations in the dural venous sinuses, you know that, but थोड़ा सा amount of CSF जो होता है that subarachnoid space continues in the vertebral canal surrounding the spinal cord, and even the nerves, cranial nerves that emerge out from the brain or the brain stem, this dura arachnoid pia mater that covers or forms a sleeve around those cranial nerves as well as the spinal nerves until they are within the bony covering, that means within the skull and within the vertebral canal. As these nerves leave out the cranial cavity, what happens is dura जो है वो किससे जुड़ जाएगा, एंडोस्टियम यानी पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल से, यहाँ पेरियोस्टियम ऑफ द वर्टिब्रे से जुड़ जाएगा डूरा मैटर। बाकी एंड क्या नाम है एरेक्नॉइड मैटर जो है वो डूरा के साथ मर्ज हो जाएगा, रह क्या जाएगा पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो एपिन्यूरियम से मर्ज हो जाएगा। द मोमेंट क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इमर्जेस आउट from their bony protection, these membranes, they actually find way how to like end up, so pia mater merges with the epineurium of the nerves। अब बात होती है सब अरेक्नॉइड स्पेस की। सब अरेक्नॉइड स्पेस का क्या होगा, तो जब नर्व चल रही थी ये तीनों लेयर्स विद इन द क्रेनियल कैविटी दे आर कवरिंग, वहां पे जैसे फोरामेन से निकल रही है, मान लो कोई भी नर्व स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकलती, कौन सी फेशियल नर्व निकलती है, तो जो कवरिंग्स हैं आउटर टू कवरिंग्स हैं वो तो जुड़ जाएंगी, पेरियोस्टियम से मर्ज कर गई। पाया मैटर किससे मर्ज कर गई, एपिन्यूरियम से। बीच में क्या रह गया, CSF इन द सबअरेक्नॉइड स्पेस। वो क्या करेगा, वो नर्व्स के अराउंड देयर आर पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स, याद रखना। तो पेरीन्यूरल, चूंकि मैंने बताया था कि CSF इज अ काउंटर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द
cranium, or you can say it in the cranium and vertebral system, or you can say simply कि ये nervous tissue में lymphatics का replacement है. तो फिर जब ये या बाहर खुलेंगी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हो चाहे स्पाइनल नर्व्स, तो जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो जो शीथ बना के पेरीन्यूरल शीथ बना के चल रही थी, तो उसका सब अरेक्नॉइड स्पेस किससे मर्ज कर जाएगा? जाके पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव शोन कि ये आ रही है यहाँ से सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ, और ये नर्व्स निकल रही हैं. जब ये नर्व्स निकलती हैं तो CSF also comes out very minute amount. Let me tell you this, क्योंकि 99% CSF तो सब इसी में ड्रेन होगा ना, ड्यूरल वेनस साइनसेस में. But some amount of CSF is also drained into the perineural lymphatics. यहाँ एरो से दिखा दिया है. ठीक है, तो एक ये भी ऑप्शन है ड्रेनेज का. मतलब यू कैन नॉट रूल आउट इफ देयर इज लाइक अमंग द चॉइसेस गिवन इन योर MCQs. ठीक, पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स में भी ड्रेनेज होता है. अब थोड़ा सा ये डिटेल में दिखाया गया है कि दिस इज अबाउट द कोरॉइड प्लेक्सस, द फॉर्मेशन ऑफ CSF. ये जैसे मैंने अभी को एक और देंगे डायग्राम दिखाया था कोरॉइड प्लेक्सस का. दिस इज अ ब्लड कैपिलरी, राइट. तो ब्लड कैपिलरी में द सेल्स, दीज आर एंडोथेलियल सेल्स विद ये इंटरसेलुलर गैप्स हैं. अब ये गैप्स कहीं पे फेनिस्ट्रेटेड होते हैं या ये इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं, और ये विद इन द सेल इंटरसेलुलर गैप्स भी हो सकते हैं. तो एक तरह से परमियाबिलिटी तो होती है कैपिलरीज में. देन दिस इज द पायमेटर कनेक्टिव टिश्यू, एंड आउटसाइड यू हैव दिस इज द सिक्रीटिव एपेंडाइमा व्हिच इज अ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. गॉट इट. तो ये एक पूरा क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस है. और जहां पे ये ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है उसके बाहर क्या होता है, CSF. सो ये CSF हेयर ऑन आउटसाइड, ये सब CSF है, और इसके अंदर होगा ब्लड विद इन द कैपिलरी. ठीक, तो अब जैसे मैंने बताया था कि कोरॉइड प्लेक्सस क्या कर रहा है कि ये CSF से इंग्रेडिएंट्स ले रहा है, एक तरह के एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और यहाँ से जो इसमें एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि या तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या सिक्रीशन फ्रॉम द एपेंडाइमा होगा. वो फिर फॉर्मेशन ऑफ यानी कि प्लाज्मा इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CSF फ्रॉम ब्लड वेसल्स व्हेन इट रीच टू द, ये वेंट्रिकुलर कैविटी है. ठीक है, वेंट्रिकुलर कैविटी में जब जाएगा यहाँ से कैपिलरीज से निकल के, इसमें तो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता. तो ये जो यहाँ से प्लाज्मा यहाँ तक पहुंचेगा, उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो सब तुम्हें बाकायदा फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा. द पर्पस ऑफ टेलिंग इज दैट प्लाज्मा व्हेन इट रीचेस द CSF, दिस हैज टू क्रॉस दीज बैरियर्स. यानी एंडोथेलियम लाइनिंग होती, पायमेटर कनेक्टिव टिश्यू, एंड द सिक्रीटिव पेंडाइमा. ठीक, अब देखो ये यहाँ पे जो पर्पस बताने का इस स्लाइड का है कि प्लाज्मा और CSF में फर्क क्या होता है. क्योंकि CSF रिपोर्टिंग बहुत कराते हैं, पैथोलॉजी में सैंपल आता है, बंदे को मेनिंजाइटिस हो गया है. मेनिंजाइटिस जो होता है ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अगर देखा जाए तो ज्यादा है, खासतौर से ये जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है और वायरल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से कहते हैं पायोजेनिक. तो वो मेनिंजाइटिस में ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आते हैं CSF में, तो CSF का सैंपल लेना पड़ता है. या कोई बंदे को इंट्राक्रेनियल हेडेक रहता है, इंट्राक्रेनियल रेज्ड प्रेशर रहता है, तो उसका भी CSF टैपिंग करा लेते हैं, वही लंबर पंक्चर करके. तो उसको हम एनालिसिस के भेजते हैं पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में भी कि इसके जिस तरह से प्लाज्मा की रिपोर्टिंग होती है उसके सारे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स की, उस तरह से CSF की भी रिपोर्टिंग होती है. तो यू नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट द मिनरल्स एंड प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज विद इन द CSF. तो वैसे तो डिटेल में फिजियोलॉजी का पार्ट है. तो प्लाज्मा when it crosses this epithelium, ependynal epithelium, and reaches the other side, it is called CSF. ठीक, अब इसमें ये हाई टू लोअर ग्रेडियंट
ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मैंने बताया ना, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ये कोरोइडल एपिथेलियम है, इधर प्लाज्मा, इधर सीएसएफ, राइट। तो डिफरेंस देखा जाए अगर, तो डिफरेंस तुम्हें, होल्ड ऑन, दिख रही है ना स्लाइड? ओके। सो डिफरेंस देखो, प्लाज्मा का नॉर्मल तुम लोगों ने इतनी बार फिजियोलॉजी में पढ़ ही लिया होगा कि प्लाज्मा में अराउंड 145 जो भी यूनिट्स होती हैं मिली इक्विवेलेंट्स, सोडियम का 145 अराउंड रहता है, पोटेशियम इज अराउंड 4, बाकी कैल्शियम थोड़ा सा पोटेशियम से ज्यादा रहेगा, बाकी मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, लैक्टेज, फॉस्फेट्स। प्रोटीन देख लो कितना सारा है इसमें प्लाज्मा में। प्लाज्मा हैज इनफ प्रोटीन क्योंकि यही ऑन्कोटिक प्रेशर बनाता है एट द वेनस एंड, यानी जब हमने बताया था कैपिलरी बेड पे जाते हैं तो वेनस एंड पे दैट सक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एट द वेनस एंड बिकॉज ऑफ द ऑन्कोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट। तो प्रोटीन प्लाज्मा में याद रखना काफी रहती है। और ग्लूकोज अराउंड 95 टू 100, वैसे भी फास्टिंग लोग चेकअप करते ही हैं तुम्हें ब्लड ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज 95 टू 100 रहता है, ठीक है, प्लाज्मा में। अब सीएसएफ में चेंजेस क्या हैं, तो एक चीज देखो कि सोडियम इज मोर, स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ इन द प्लाज्मा। सोडियम थोड़ा ज्यादा है, पोटेशियम भी कम है, कैल्शियम भी कम है, मैग्नीशियम भी हल्का सा ज्यादा है, क्लोराइड भी कम है, बाइकार्बोनेट्स भी कम है, लैक्टेट्स भी कम है, फॉस्फेट्स भी कम है, प्रोटीन भी काफी काफी कम है, और ग्लूकोज भी कम है, ठीक। तो जो लोग भूल जाते हैं, मतलब हम जैसे याद कर लेते हैं कुछ चीजें इजी तरीके से याद करने के लिए, मुझे जो इसको याद करने का रहता है, क्योंकि अक्सर देखोगे रिपोर्ट लोग तुम्हें पढ़ा देंगे, अभी तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो कोई रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं कि ये रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब, देखिए आप तो पढ़ रहे हैं, कुछ देख के बताइए क्या है। तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए किसी भी फील्ड में जाओ। तो हमें तो ऐसा लगता है कि प्लाज्मा और सीएसएफ में अगर कंपेयर करें तो प्लाज्मा में नमक ज्यादा है। सिंपल सी बात इतनी सी याद रखनी है, सोडियम एंड क्लोराइड, बस ये दो चीजें पे ध्यान रखना है तो अपने आप चीज याद रहेगी। इतना तो याद रहेगा कि सीएसएफ में नमक ज्यादा है कंपेयर टू प्लाज्मा, बोथ सोडियम एंड क्लोराइड लेवल्स आर मोर इन सीएसएफ, रेस्ट ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यू कैन से कि उसमें कम है, ठीक। इतनी सी, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग जर्नी होती है एक मेडिको की, कितने सारे अभी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके वेरिएबल्स, उनके नॉर्मल लेवल्स याद रखने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं। इतनी सी बात से इतना तो याद रहेगा कि हाँ ये दोनों चीज सोडियम एंड क्लोराइड दोनों चीज सीएसएफ में प्लाज्मा के कंपैरिजन में अधिक है, तो सीएसएफ में नमक ज्यादा है, यानी कि सॉल्टी टेस्ट करेंगे तो भी सॉल्टी फील होगा। बस एक छोटा सा मैग्नीशियम भी, थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड करके याद कर सकते हो, ये दोनों चीज इसमें ज्यादा है बस, ठीक। तो इतनी सी याद है कि प्लाज्मा कंपैरिजन, अब यहाँ पे स्लाइड दिख रही है ना, थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें, तो होल्ड ऑन, हाँ। अब पढ़ना फिजियोलॉजी में गेनोम वगैरह में और डिटेल में सब कुछ इसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, सीएसएफ के बारे में लिखा होगा अच्छे से, हो सकता है इसकी डिटेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी दिया होगा, लेकिन हमें इतनी चीज बस याद रखनी है कि सीएसएफ में प्लाज्मा के कंपैरिजन में नमक ज्यादा है। एक समरी दी है यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में, they have drawn this nervous tissue with the central cavity and a peripheral cavity. Central is the ventricular system, this is the dural venous sinuses, और ये है सब अरेक्नॉइड स्पेस, तीनों स्पेसेस दिखा दिए। वेंट्रिकुलर स्पेस इज दिस, then this is subarachnoid space and this is a dural venous sinus। ये रेड कलर से इन्होंने दिखाया है कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट और ये फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक। तो यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से अब ये सब बना है, आगे गया फोरामेन ऑफ मोनरो है ये,
फिर यहाँ पे इसको थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ मिला, एक्विडक्ट में गया, फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ बन रहा है, फिर ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे लिस्का एंड मेजेंडाई से इट विल मूव आउट इन विच सिस्टम, इन द सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टम, फिर पूरे सीएसएफ सब अरेक्नॉइड स्पेस में सर्कुलेट होगा और ये अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन से वापस पहुंच गया ड्यूरल वेनस साइनस। इसलिए बता रहे हैं फ्लो चार्ट आ जाता है 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा, आई थिंक 5 मार्क्स का अगर सीएसएफ फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज आया तो उसमें फ्लो चार्ट में ये बना देना पड़ेगा तुमको, वो याद रहेगा तुमको। अब थोड़ा सा डिटेल में इस पे हम करते हैं किसके बारे में बात, अबाउट द सब अरेक्नॉइड, जो कल टॉपिक रह गया था सिस्टन्स का। ठीक है, सब अरेक्नॉइड डायलिटेशंस होते हैं कुछ जगह, जो देखो क्या है कि ये है लेटरल वेंट्रिकल, ये फोरामेन ऑफ मोनरो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जहां से दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट करते हैं। क्या सीएसएफ ऑब्वियसली, अब ये सीएसएफ ज्यादा है तो ये इसकी वजह से आई थिंक स्पेसिफिक ग्रेविटी सीएसएफ की थोड़ा ज्यादा है, वन ऑफ द रीजंस कि वो इसीलिए मेंटेन करके रखती है वेट ऑफ ब्रेन को। तो माइट भी कि जैसे लिखा है सिवाय सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, तो किसी चीज में अगर आप डाल दोगे मिनरल ज्यादा क्लोराइड, तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन तो ये बनता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसीलिए तुम्हें पता ही होगा कि समंदर में डेड बॉडी डूबती नहीं है, ये सुना है कभी संजना? क्यों नहीं डूबती है? तो बहुत प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था कि समुद्र में डेड बॉडी नहीं डूबती है, उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस ब्रैकिश वाटर? यस, तो ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर। तो तुमने भी सुना होगा समुद्र में डेड बॉडी डूबती, क्यों नहीं डूबती? तो रीजन समझ में आ गया ना, जब नमक ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चीज हो ज्यादा हो जाती, तो जब किसी भी चीज का वजन ज्यादा होगा तभी तो डूबेगा ना। तो इसीलिए जब जैसे कहते हैं ना, एक स्विमिंग पूल में एक बंदा की डेड बॉडी डूब जाएगी, बट समुद्र में नहीं डूबती बिकॉज ऑफ ब्रैकिश वाटर। तो एक रीजन तो ये था, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी वजह से CSF कैन फ्लोट। बाकी माइट बी अबाउट द डिमांड्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, दैट ऑफ कोर्स वो और आगे की बातें हैं कि उसकी सोडियम पोटेशियम की डिमांड, एंड ऑफ कोर्स दैट नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ये तो सबको पता ही है, जब तुम लोग का फिजियोलॉजी स्टार्ट हुआ था तब एक्शन पोटेंशियल बताया गया होगा, चाहे वो मसल कंट्रैक्शन में पढ़ाया गया हो, चाहे वो नर्व कंडक्शन में पढ़ाया गया होगा। दैट इम्पल्स कंडक्शन में सोडियम चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस चलती हैं। तो जब सारा सिस्टम जो है ट्रांसफर का है, इम्पल्स का, तो भाई सोडियम आयंस के ही थ्रू, ये तो सोडियम एंड क्लोराइड के ही तो इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होता है भाई। आउटसाइड पे क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं, इनसाइड में नेगेटिव आयंस होते हैं। एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन कॉल्ड, कोई बता देगा? पोटेंशियल, टू कैलकुलेट अ नर्व पोटेंशियल इन रेस्टिंग स्टेट, कौन सी इक्वेशन से होता है? गोल्डमैन कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन या नर्स्ट इक्वेशन? गिब्स डोनार इक्विलिब्रियम भी होता है, एक नर्स्ट इक्वेशन होती है, गोल्डमैन कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन भी होती है, नर्स्ट भी होती है। यस, तो ये सब अच्छे से जान लेना, फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन जो मेरे समझ में दो बातें आई, एक तो नर्वस टिश्यू को सोडियम डिमांड ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग फॉर्म्ड, और यू कैन से इंपल्सेस टू बी कंडक्टेड, इसलिए सोडियम क्लोराइड की जरूरत ज्यादा है। दूसरा, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बना के ज्यादा रखनी है ताकि ब्रेन का वजन फील ना हो। गॉट इट? ओके संजन, आप समझ में आ गया होगा। ओके हाँ, नर्स इक्वेशन होती है, ये चीज तुम देख लेना। वैसे एक बात है, ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एक टेस्ट होता है पीजी का, अब तो नीट से ज्वाइन हो गया, उसमें पूछा गया था एक बार, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होती है। उसमें नर्स इक्वेशन आती है, मतलब चॉइसेस में था नर्स इक्वेशन, गोल्डमैन कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन, और ये जो गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम है, ये सब चीजें जो हैं ये देख लेना, इस पे पूछा जा चुका है। एक जमाना तक कभी कभी एक कैलकुलेशन के बारे में भी पूछ लेते थे भाई, वो आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया है, पढ़ते रहो उसको, उसमें कैलकुलेशन की भी इक्वेशन होती। अब देख लेना, ये सब हाई लेवल है फिजियोलॉजी में अच्छे से। कितना होता है कोई बता देगा?
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 और प्लस -60 होता है मसल फाइबर में, -9 60 to 70 आई थिंक मसल फाइबर में माइनस होता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता। नेगेटिव पोटेंशियल में जो होता है वो -60 to 70 आई थिंक मसल फाइबर में होता है, और न्यूरॉन्स में -90 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब इस पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज तो अच्छा मसल फाइबर में माइनस, हाँ तो कहीं 60 भी लिखा होगा, लेकिन -70 भी ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, तुमको बार बार बता चुके हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं डायलिटेशंस ऑफ द सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये कल टॉपिक रह गया था थोड़ा सा, इस पे ध्यान देते हैं। तो ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है, जैसे मैंने बताया था। अरे ये क्या चल रहा है भाई, ये प्रखर गुप्ता अभी तक एंट्री मार रहे हैं 140, इतनी लेट एंट्री, इनको पता नहीं था क्या मेरी क्लास है, जो अब इन लोगों ने मतलब टाल रखा है एकदम लेट एंट्री के लिए। ओके ध्यान दो इधर। तो ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है जहां पे, अरे भाई अब तो ये लास्ट में आ रहे हैं अटेंडेंस के लिए, प्रखर। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज वाज अ क्वेश्चन यस्टरडे ऑन दिस। तो यहां से ये फोर्थ वेंट्रिकल, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था। So यहाँ से CS comes out through foramen of Mishka and Lujendai and reaches this। अब यहाँ से बात करेंगे हम पूरे सराउंडिंग द पायामेटर के बाहर तरफ, सराउंडिंग में नर्वस टिश्यू के यू हैव सर्टेन डायलिटेशंस, ठीक, उस पर ध्यान देते हैं। तो लार्जेस्ट तो ये हो गई सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टम, और ऊपर जब ये चलेगा तो ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे इंफ्राटेंटोरल कंपार्टमेंट में, और ये है डायनसेफ्लॉन, दिस एरिया इज द डायनसेफ्लॉन, जिसके रूफ में यू कैन सी इज ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वेन निकलती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। वो किससे जुड़ जाती है? स्ट्रेट साइनस से। तुम्हें पता है टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर midway in the median plane it is this central straight sinus, और वो किससे बनता है? फॉक्स सेरिब्राई का पोस्टीरियर एंड। तो ग्रेट सेरिब्रल वेन इससे जुड़ जाती है, लेकिन उसके नीचे जो स्पेस है वो डायलेटेड स्पेस है सब अरेक्नॉइड्स का, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना एम्बियंस। याद रखना, दिस इज सिस्टर्ना एम्बियंस, ठीक। दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्न ऑफ ग्रेट सेरेब्रल वेन, ठीक। अच्छा एक और चीज साथ साथ करते रहते हैं, वो ये है कि इसमें क्या क्या होता है। लोग ये भी पूछा जाता है कि भाई CSF becomes dilated at certain subarachnoid space, becomes dilated at certain places, तो वो डायलिटेशन क्यों है और वहां पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो सिस्टर्नम मैग्ना यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी मिलेगी, रिमेंबर यहाँ पे फोरामेन मैग्नम ऑफ स्कल का है, तो यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी इंटर करती, तो इसमें वर्टिब्रल आर्टरी को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यहीं पे उसका ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। वो दो वेसल्स यहाँ पे मिलेंगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, प्लस यहाँ से जो है आगे मेडुला से ही निकल रही थी। कौन कौन सी नर्व है? 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो भी यहीं पे निकलती हैं, और साथ साथ कोरॉइड प्लेक्सस भी होता है फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ में ही, ठीक है। तो ये सारी चीज को एक कुशन प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टम यहाँ पे काफी डायलेटेड है। तो कल कोई पूछा जाए व्हाट आर द कंटेंट्स व्हाट यू विल फाइंड इन द सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टम, तो ये याद रखना है 2 आर्टरी हैं, बाकी की लास्ट चार क्रीनियल नर्व्स हैं, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का कोरॉइड प्लेक्सस। अब बात करेंगे कि सिस्टर्ना एम्बियंस में क्या मिलेगा। ये जो है ना ग्रेट सेरेब्रल वेन जब यहाँ खुलेगी, तो ये जो डायलिटेशन है यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन और पीनियल ग्लैंड,
इन दो चीज की, देखो पीनियल ग्लैंड ये है, ठीक है, और उसके ऊपर ये है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। ये दोनों चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो किससे, सिस्टर्ना एम्बियंस। ठीक, अब देखते हैं आगे की तरफ जब ये चलेंगे वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड में ये है पॉन्टाइन फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। तो बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला एक पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन कहते हैं, यहाँ पे पता है 4 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, कौन कौन सी, 6th 7th एंड 8th, एंड मोटर कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व जिसे कहते हैं नर्वस इंटरमीडियस। तो ये 4 नर्व्स निकलती हैं यहाँ पे पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन पे। ठीक, उसी के नीचे डायलिटेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना पॉन्टिस। ठीक, तो और ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सब अरेक्नोइड स्पेस में बेसिलर आर्टरी होती है। ठीक है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस, और बेसिलर आर्टरी वन ऑफ द कंटेंट्स यू विल फाइंड इन द सिस्टर्ना पॉन्टिस इज बेसिलर आर्टरी प्लस एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखो यहाँ पे याद रखना है, दोनों तकरीबन नियरली सेम लेवल पे हैं, तो इसमें मिलेगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सिस्टर्ना पॉन्टिस में मिलेगा एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक, साथ साथ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक, और कौन सी, 6th यानी एब्डूसेंट नर्व। एक्चुअली फेशियल नर्व लिख सकते हो, नो डाउट, फेशियल नर्व जब मैं बताया 8th क्रेनियल नर्व भी यहीं पे निकलती है, बट वो लेटरली घूम के चले जाते हैं। ये वहीं पे रहने वाली नर्व कौन सी है, 6th नर्व। ठीक है, याद करना चाहो तो चारों लिख दोगे, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, तो बेसिलर आर्टरी हो गई, और दो और ये हैं सेरिबेलर वाली, एक एंटीरियर इंफीरियर, एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड द 6th क्रेनियल नर्व यू विल फाइंड इन सिस्टर्ना पॉन्टिस। अब पॉन्स को बेथ करते हुए ऊपर चले जाएंगे तो ये मिलेगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर साइज का होता है, और ये सब किसके ऊपर रखा हुआ है, क्लाइवस के ऊपर। ठीक है, ब्रेन के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो टिल्टिंग स्लोप थी क्लाइवस पे, ये सब रखा हुआ है इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में। और ये भी बताया था मिड ब्रेन का लोअर पोर्शन इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट, ये हाइंड ब्रेन है पूरा, और हाफ ऑफ इट रीचेस इज इन दिस। तो मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर का है ये। इसके मिड ब्रेन में द वेंट्रल एस्पेक्ट में ये वाला जो पोर्शन है, देखो मिड ब्रेन की कैविटी क्या है, ये एक्विडक्ट है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो मिड, ये पीछे की तरफ ये दो बल्जिंग्स हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस हैं। आगे की तरफ ये है, ये क्रस सेरिब्राई कहते हैं, सेरेब्रल पेडंकल्स, क्योंकि मैंने बताया था मिड ब्रेन से ही दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं। तो इस वजह से बिकॉज द 2 सेरेब्रल पेडंकल्स आर एंटीरियरली प्लेस्ड द स्पेस, और ये वी शेपेड होता है, एक और बताएंगे, वी शेपेड होता है, यानी कि दोनों तरफ पेडंकल दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के लिए डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। अब याद रहेगा इसको पेडेंकुलर क्यों कहते हैं। मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट में दिस नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल। सो इट्स डाइवर्जेंट रूट, यानी दो सेरेब्रल पेडंकल दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट डाइवर्ज कर रहे हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ने के लिए। तो बीच में जो भाई स्पेस बनी ना, तो वो जो स्पेस बनी उसको कहते हैं इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन सा, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस यानी सारी जो आर्टरीज हैं, जिसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सब का मिला के एक सर्कल बनता है, सर्कल ऑफ विलिस। उसकी लोकेशन क्या है यही समझ लो अच्छे से, वो इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से यहां पे प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहां पे डायलिटेशन है सबअरेक्नॉइड स्पेस का, दिस इज कॉल्ड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। क्या क्या मिलेगा, ऑप्टिक काइज्मा मिलेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये ऑप्टिक काइज्मा मिल रहा है यहाँ पे। बाइफिकेशन ऑफ बेसिलर आर्टरी, यहाँ पे बेसिलर आर्टरी टर्मिनली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, तो बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी मिलेगा। पेडेंकुलर सेगमेंट्स, यानी कि जैसे कोई आर्टरी निकल रही है, तो ये चूंकि पेडंकल्स है ना, ये सेरेब्रल पेडंकल्स, वो वाला पोर्शन किसका मिलेगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का। ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ही सर्कल बनाती, यानी कि कुछ ब्रांचेस इसमें, बेसिलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, और मिडिल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड। तो सबको जोड़ के रखने के लिए यू हैव
टू एडिशनल यानी कि पेयर्ड होती हैं ये। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आर पेयर्ड, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज अनपेयर्ड, यानी ये तीन आर्टरीज, दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, मिला के एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ मिलेगा सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग मिलेगी प्लस परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब ये परफोरेटिंग ब्रांचेस का मतलब क्या है, देखो मैंने तो बताया था सेरेब्रल आर्टरीज की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताई थी, एक जो ग्रे मैटर को परफोरेट करेगी, परफ्यूज करेगी, वो थी कॉर्टिकल ब्रांचेस। फिर बताया था कुछ ब्रांचेस डीप अंदर जाएंगी जो कि एंड आर्टरीज होंगी और वो व्हाइट मैटर को सप्लाई करेंगी, उनकी कोलैटरल्स नहीं होते इसीलिए उनका डैमेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो हो गई सेंट्रल ब्रांचेस। लेकिन कुछ ब्रांचेस हैं जो परफोरेट करके यानी ब्रेन सब्सटेंस के और वो अंदर जाएंगी और वो कहां पहुंचेंगी, याद करो वेंट्रिकुलर सिस्टम में पहुंचेंगी, एपेंडाइमा के नजदीक पहुंच जाएंगी और कोरोइड प्लेक्सस बना लेंगी। उन ब्रांचेस को कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो तीन तरह की ब्रांचेस याद रख लेना सेरेब्रल आर्टरी की, कॉर्टिकल ब्रांचेस, सेंट्रल ब्रांचेस, ये लेयर बाय लेयर है, ऊपर से कितने अंदर आ रही हैं। मान लो ब्रेन सब्सटेंस के ऊपर सबरेक्नॉइड्स के स्पेस में पायामेटर के ऊपर रखी होती हैं ये ब्लड वेसल्स, दो जो छोटी ब्रांचेस हैं सबसे ज्यादा वो है कॉर्टिकल ब्रांचेस, वो ऊपर ऊपर कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी। कुछ और अंदर जाएंगी व्हाइट मैटर के लिए, वो हो गई सेंट्रल ब्रांचेस। फिर कुछ और अंदर जाएंगी जो व्हाइट मैटर के बिल्कुल इनसाइड पहुंच जाएंगी, जहां पे वेंट्रिकुलर कैविटी है यानी एपेंडाइमा को एलिवेट कर देंगी और कोराइड प्लेक्सस बना लेंगी, तो उनको कहते हैं परफोरेटिंग आर्टरीज। तो परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और बेसिलर वेन ऑफ रोजेंथल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगी याद रखना इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में, क्योंकि दो नेम्ड वेन्स हैं, एक ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन है, दूसरी है बेसल वेन ऑफ रोजेंथल। ये बेसल वेन ऑफ रोजेंथल दोनों मिलके ही बनाती हैं क्या, और मिडिल सेरेब्रल वेन भी इसमें जुड़ती है और फिर वो मिलके बनाते हैं ग्रेट सेरेब्रल वेन। तो बेसल वेन ऑफ रोजेंथल इज आल्सो अ कंटेंट ऑफ इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। एंड याद रखो मिड ब्रेन से दो क्रेनियल नर्व निकलती हैं, वन इज थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व मीडियली निकलती है, लेटरली निकलती है, चूंकि वो पेडंकल्स के लेटरल निकलती है इसलिए उसको कंटेंट नहीं माना है इन्होंने, थर्ड को माना है। थर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स के मीडियल आती है, तो क्रेनियल नर्व थर्ड मिलेगी बिटवीन। अच्छा एक बात और, जब ये निकलती है यहाँ पे देखो, अभी आगे जैसे जाते जाओगे डायग्राम्स और मिलेंगे, तो सेरेब्रल पेडंकल्स को क्रॉस करने वाली जो वेसल्स हैं उसमें क्या है कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे दोनों सेरेब्रल आर्टरीज क्रॉस करेंगी, उन दोनों आर्टरीज के बीच में निकलती है थर्ड क्रेनियल नर्व। ये अपने आप में एक एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, विच क्रेनियल नर्व इमर्जेस बिटवीन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो ये दोनों आर्टरीज मिलेंगी। अगर तुमने ये सब झमेला इतनी सारी चीजें याद ना रहे, तुम सर्किल ऑफ विलिस वर्ड रखो याद, और सर्किल विलिस में सारी आर्टरीज जुड़ती हैं, तो ये सब तुम्हें ऑप्शंस यहाँ याद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ये दो इंफीरियर वाली याद रखना, वो आगे पीछे हैं, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर पॉन्टिस में, और मैग्ना में कौन सी है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। बाकी सुपीरियर सेरिबेलर इसमें याद रखो, और साथ साथ इसमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक, ये सब हो गए। अब इसके बाद ये सब यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ ड्रेन होगा, और नीचे आते हैं सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड में आता है। जैसे मैंने बताया, द लोअर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोनस मेडुलारिस एंड इट टर्मिनेट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। तो वहां पे भी डायलिटेशन होता है सेंट्रल कैनाल का, जिसको हम टर्मिनल वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, देयर आर 6 वेंट्रिकल्स, तो वन ऑफ द वेंट्रिकल इज टर्मिनल वेंट्रिकल लाइंग इन द कोनस मेडुलारिस। प्लस CSF जो ये चल रहा था सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ये L1 पे खत्म हो गया स्पाइनल कॉर्ड और पाया मैटर, बट पाया मैटर कंटिन्यू करेगा कॉसिक्स तक, इट रीचेस डाउन टिल द कॉसिक्स इन द फॉर्म ऑफ फाइलम टर्मिनल। वन ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ फाइलम पाया मैटर इज फाइलम टर्मिनल और लिगामेंटम डेंटिकुलाटम भी बता चुका हूं तुमको। अच्छा, अब ये देखो जो डूरा एंड एरेक्नॉइड है, डूरा एंड एरेक्नॉइड
बताया था मैंने, इनका प्रोलॉन्गेशन नीचे जाता है वर्टिब्रल कैनाल में, कहां तक? S2। वेरी गुड उदय जैन, लोअर बॉर्डर ऑफ S2 तक जाएगा। यानी L1 के लोअर बॉर्डर से S2 के लोअर बॉर्डर तक आपको सिर्फ CSF दिखा मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। लेकिन ये मत भूलना कि ये स्पाइनल कॉर्ड की सारी इमर्जिंग जो ब्रांचेस हैं, L1 से लेकर के cos6 तक, यानी कि पांचों लंबर, चारों लंबर, पांचों लंबर, पांचों सेक्रल और फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व, ये सारी नर्व्स इसमें मिलेंगी और सबको मिला के क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्वाना। तो कॉर्डा इक्वाना भी मिलेगा इसके अंदर। ठीक, तो लंबर पंक्चर इसलिए यहां बेटर रहता है क्योंकि यहां पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ठीक, L3 L4 में करते हैं बीच में। अब हाँ, अब इसके बाद देखते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया। अच्छा, एक और चीज है जो हम लोग देते हैं इन, यानी कि CSF टैपिंग करनी है या हमको CSF टैपिंग के लिए तो हमें वही करना पड़ेगा कि यहां से CSF टैप करेंगे L3 L4 से। ठीक, प्लस स्पाइनल एनेस्थीसिया भी यहीं से लगाते हैं L3 L4 में। एनाल्जेसिया के लिए एक और चीज है। एनाल्जेसिया अगर जैसे होता है, एक रिमेंबर शियाटिका बताया गया तुम लोग को, पढ़ाया गया था लोअर लिम्ब में, शार्प बर्निंग पेन होता है अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियाटिक नर्व, और शियाटिक नर्व से बनती है टीबियल नर्व, उसी में होती है, उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। टीबियल नर्व क्या करती है? पूरा बैक ऑफ थाई कवर कर लेती है और बैक ऑफ लेग कवर कर लेती है। और कॉमन पेरोनियल क्या कवर करती है? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, सुपरफिशियल ब्रांच और फ्रंट ऑफ लेग एंड डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल आर्टरी नर्व होती है। डॉर्सम ऑफ फुट में भी डीप डीप पेरोनियल नर्व होती है। ठीक, और टीबियल नर्व ही नीचे जाकर के सोल में बना लेती है मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व, तो वो भी टीबियल नर्व का पार्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ऐसे सोचो, फ्रंट ऑफ थाई फीमोरल नर्व का है और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई किसका है? ऑब्टुरेटर नर्व का है। ठीक, बाकी पूरा लोअर लिम्ब शियाटिक नर्व का कवर्ड है। तो इसमें बहुत सीवियर पेन, एगोनाइजिंग पेन होता है बंदे के लिए, तो उस कंडीशन में हमें स्पाइनल एनाल्जेसिया देना पड़ सकता है। ओरल एंटी एनाल्जेसिक खाने से नहीं दर्द खत्म होगा। ठीक है, तो जितने ये इबुप्रोफेन है, एनासिड्स हैं, जितने वो खाने से नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें इंटरमस्कुलर इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें हम डायरेक्ट जाके नर्व रूट्स को, अब शियाटिक नर्व के नर्व रूट्स तो सबको पता ही होने चाहिए, यानी कि टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों के नर्व रूट्स मिलके ही बनती है शियाटिक नर्व। तो L4 से स्टार्ट होती है, L4 L5 S1 S2 S3, वेंट्रल डिवीजन इज टिबियल नर्व, और L4 L5 S1 S2 उसमें एक कम होता है, डॉर्सल डिवीजन इज कॉमन पेरोनियल नर्व। तो इस लेवल पे जो नर्व्स निकल रही हैं वहीं पे बेथ कर देना है, हमें एनाल्जेसिया दे देना है। तो याद रखना, ये जो हम एनाल्जेसिया देते हैं ये हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। ठीक है, एपिड्यूरल का मतलब हमें जो नीडल पास करनी है वो मेनिंजेस को पियर्स ही नहीं करनी है, तो ही तो एपिड्यूरल स्पेस में रहेंगे ना। द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रल स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कैनाल एंड द ड्यूरा इज एपिड्यूरल स्पेस। ठीक, तो हेलो अब्दुल, अब सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? हम तो सब सही बता रहे थे। हाँ, तो एपिड्यूरल स्पेस जो है ये कहां पे देंगे? ये देंगे सेक्रल हाइटस में। तुमको सेक्रम पढ़ा दिया गया है। सेक्रम के डॉर्सल एस्पेक्ट में इफ यू सी कि 4 स्पाइन्स हैं, अब 4 सेक्रल वर्टिब्रे की स्पाइन्स होती हैं, 5th सेक्रल वर्टिब्रे की जो स्पाइन होती है वो बाइफिडेड होती है, बीच में एक ओपनिंग होती है, जैसे कहते हैं टर्मिनल हाइटस या सेक्रल हाइटस, यानी कि बंदे को वही लेफ्ट लेटल पोजीशन पे लिटा करके काउच पे, एंड उसके नेटल क्लेफ्ट, नेटल क्लेफ्ट, द फोल्ड इन बिटवीन द टू ग्लूटियस मैक्सिमस, तो उस नेटल क्लेफ्ट में इफ यू कीप पाल्पेटिंग द टिप ऑफ द स्पाइन, द लास्ट पॉइंट आएंगे और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइन। वो चूंकि वहां पे तो S2 पे भाई डूरल एरेक्नॉइड एंड डूरा दोनों खत्म हो चुकी है ना S2 पे,
यानी S2 के नीचे अगर हम, क्योंकि S2 के नीचे हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो सेक्रम के अंदर है, तो लास्ट ओपनिंग कहां होती है? सेक्रल हाइटस में। सेक्रल हाइटस में अगर हम एनाल्जेसिया देंगे तो फिर वो डूरा को पियर्स करने का कोई चांस नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि S2 पे डूरा खत्म हो चुका है, सेक्रल हाइटस S5 के लेवल पे होता है। तो इस वजह से सेक्रल में याद रखना कि ये स्ciatic नर्व के लिए हमने एक्चुअली ये चीज कराया, एसिस्ट भी कराया, देखा भी है, तो आई नो इट कि ये एग्जैक्टली इसके सेक्रल हाइटस में इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। वो वोरॉन भी दे सकते हैं, वो डायरेक्ट जाकर के आपको रिलीफ दे देता है, ठीक। तो ये तुमको बता दिया एनाल्जेसिया, सेक्रल एनाल्जेसिया कहां देते हैं। उसके अलावा मेनिंजाइटिस के फीचर्स भी थोड़े से पॉइंट कर लें, क्योंकि मेनिंजस की इतनी बातें हुई। मेनिंजस की जो मेनिंजाइटिस है उसका क्लिनिकल फीचर ये है कि किसी बंदे को फीवर तो होता है बहुत कंडीशंस में, तो फीवर के साथ साथ उसकी गर्दन अकड़ जाएगी, और गर्दन अकड़ जाएगी का मतलब कैसे पता चलेगा? कि उसके गर्दन के पीछे हाथ लगा करके उससे कहेंगे अपनी चिन, यानी कि चिन को अपने सीने से टच करें, ठीक। तो जब वो बंदा अपने चिन को जो है चेस्ट से टच करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, और इनफैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसमें गर्दन में दर्द होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नेक रिजिडिटी। दैट इज अ क्लासिकल साइन ऑफ, हॉलमार्क साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। याद रखना, मेनिंजाइटिस का नाम जहां आए, नेक रिजिडिटी, इसी से कंफर्म कर लेंगे बेड साइड पेशेंट को देख करके, प्लस उसकी सीएसएफ फाइंडिंग्स, फिर उसके बाद तो डायग्नोस्टिक में चला जाएगा, फिर उसकी सीएसएफ टैपिंग करा के रिपोर्टिंग मंगा लो उसकी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री से भी मिल जाएगी इसकी सीएसएफ फाइंडिंग्स की रिपोर्ट, या पैथोलॉजी से भी मिल जाएगी, ठीक। ये मेनिंजाइटिस से नेक रिजिडिटी वर्ड जुड़ा हुआ है, याद रखना। अब क्या है, अब बात हो रही है एनॉमली, मतलब इसके पैथोलॉजी से रिलेटेड के लिए। नॉर्मल तुमने पढ़ लिया, अब ये है कि सिंथेसाइजिंग और ड्रेनेज एपरेटस पढ़ लिया, कोरॉइड प्लेक्सस से बन रहा है, एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन से ड्रेन हो रहा है। अब क्या हो सकता है, कल को ऐसा हो सकता है कि ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया, नेक रोटेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक रिजिडिटी इज, रिमेंबर, इट्स फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक में दिक्कत है कि पीछे क्या होता है, लिगामेंटम नूके होता है ना, और पीछे की तरफ ये इलास्टिसिटी उसकी होती है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग इजिली करते रहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती, और बेंड करेगा तो खिंचाव पड़ेगा मेनिंजेस में, देयर इज सीवियर पेन। तो नेक रिजिडिटी हो जाती है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। इतनी बस याद रखो, फ्लेक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द नेक इज रिस्ट्रिक्टेड, और अगर वो करते हैं फोर्सफुली तो पेन होता है, ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब इसमें पैथोलॉजीज क्या हो सकती हैं। फॉर्मेशन, एक सिंथेसाइजिंग एपरेटस, एक ड्रेनेज एपरेटस, या तो, और टोटल मेंटेनेंस कितना रहता है, 150 ml रहता है। अगर ये बनना ज्यादा तेज हो जाए, नॉर्मली ये जो ये बन रहा है 200 ml, यानी एक चाय का जो कप होता है, हर चीज को रिलेटिव टर्म्स में याद रखोगे तो चीजें याद रहती हैं। एक चाय का कप अराउंड कितना होता है, 200 या 250 ml होता है, 200 ml बल्कि कह तो, या उससे कम। तो उतना पर आवर, हर घंटे में सीएसएफ बन रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा तुम्हें कि एक चाय का कप सीएसएफ हर घंटे बन जाता है। और ये भी पूछा गया है कि एक दिन में कितना बनता है, तो दिन भर में 5 लीटर्स बन जाता है, ठीक है, अराउंड 5 लीटर्स सीएसएफ बन जाता है एक दिन में। और नॉर्मल एट एन इवेंट बॉडी में कभी किसी भी टाइम अगर देखा जाए तो 150 नॉर्मल जो है अमाउंट ऑफ सीएसएफ 150 ml है। अब बात ये हो रही कि अगर सिंथेसिस बढ़ जाए, मे बी कि किसी के कोरॉइड प्लेक्सस हाइपर एक्टिव हो जाएं और सिंथेसाइजिंग एपरेटस बढ़ गया, जिसकी वजह से सिंथेसिस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इज बीइंग एग्रीवेटेड, तो अब क्या होगा, ड्रेनेज का रेट तो नॉर्मल जो चल रहा है वही है, तो जब सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, सीएसएफ की जो सिस्टर्न्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, एंड साथ साथ और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टम भी डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलस, यानी कि ब्रेन नर्वस टिश्यू फूलने लगेगा, डायलेट हो जाएगा, है ना। अगर इन्फेंसी में कुछ ज्यादातर ये सब चीजें कंजेनाइटल होती हैं, तो जब कंजेनाइटल होती हैं तो ब्रेन की जो क्रेनियम की जो बोन्स हैं क्रेनियल वॉल्ट की, वो बहुत थिंड होती हैं, तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो फिर सर भी बड़ा हो जाता है। कुछ इन्फेंट्स होते हैं जिनका सर काफी बड़ा सा फील होता है, देखने में दिखता है।
तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, खासतौर से ये जो इन्फेंसी होती है, न्यू नेटल लाइफ होती है, उस टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उस टाइम मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाता है इस फेज में। दूसरी चीज ये है कि एक पैटर्न, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन नॉर्मल है सीएसएफ का, बट एरेक्नॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशंस में यू कैन से कि यहाँ पे ये ये उसमें जुड़ते हैं जाके डूरल वेनस साइनसेस पे, यहाँ कोई फाइब्रोसिस हो गई, थ्रोम्बोसिस हो गई, जिसकी वजह से ये ग्रैनुलेशंस जो हैं ये ब्लॉक हो गए। तो अब ड्रेनेज रुक गया, सिंथेसाइजिंग नॉर्मल थी बट ड्रेनेज रुक गया, तो भी सीएसएफ बढ़ जाएगा। बट इस कंडीशन में दोनों में फर्क है। इसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलस इंटरनस, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में तो अंदर से डायलिटेशन आएगा, पहले वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे, हाइड्रोकेफेलस इंटरनस। और अगर ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया है तो फिर क्या है, ये बाहर की तरफ सीएसएफ ज्यादा भरेगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। उस कंडीशन में क्या होगा, जो सल्काई हैं, द सल्काई इन द ग्रे मैटर, वो सल्काई डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि सीएसएफ विल ट्राई टू गो इनटू द सल्काई। ये जो पाया मैटर अंदर जाती हैं, इसके अंदर सीएसएफ पहुंचने लगेगा, ठीक। अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या आता है। सिस्टम्स ऑफ लेटर, हाँ और भी सिस्टम्स हैं, डोंट फॉरगेट, अभी किताब पढ़ोगे तो हमने जो मेजर सिस्टम्स बताए हैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लेटल सल्कस जो होता है, जो लेटल रेमस ऑफ लेटल जो होता है बिकॉज ऑफ द लेसेविंगस फिनॉइड की वजह से होता है, उसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है बस। तो पूछा जा सकता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज फाउंड इन विच सेरेब्रल सिस्टम, तो इट इज फाउंड इन, एक्चुअली उसका नाम इसी से ये सिस्टम ऑफ लेटरल सल्कस, ठीक। तो अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एक चीज हो जाती है पेपिलिडीमा। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो शीथ्स थी मेनिंजेस जो हैं, दे कवर द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स विद इन द इंट्राक्रेनियल कोर्स जितना होता है उसका। लेकिन याद रखना जो सेंसरी है, प्योर सेंसरी नर्व्स आर फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये तीनों जो प्योर सेंसरी नर्व्स हैं, इसके अराउंड सीएसएफ की कवरिंग काफी देर तक रहती है, क्योंकि ये क्रेनियम से ज्यादा बाहर तो एग्जिट कर ही नहीं रहे ना तो देखो ऑप्टिक नर्व ऑर्बिट तक जाती है, और ओल्फैक्टरी रूट ऑफ नोज तक आती है, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर कहां जाती है, ये जाती है इंटरनल ईयर तक की, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो क्रेनियल नर्व्स क्रेनियम से एग्जिट करेंगी, बाहर निकलेंगी, उसके बाद उनका जो मेनिंजेस वो सब जुड़ जाएगी पेरियोस्टियम से और एपिन्यूरल लिम्फेटिक से। लेकिन यहाँ तो मसला ही नहीं है, ये तीनों तो क्रेनियम में ही रहती है। तो इसलिए याद रखना द पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स में ड्रेनेज होगा, लेकिन जो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक शीथ होती है वो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक से ज्वाइन करती है। लेकिन ये जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ है प्योर सेंसरी, जो कि ये इंट्राक्रेनियल ही रहती है, इसमें सीएसएफ, इनकी नर्व्स के अराउंड सीएसएफ बढ़ जाएगा। अब ये चीज लिम्फे बता रहे हैं, ये क्लिनिकल साइन है इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, वो ये है कि बच्चों में तो साइज वाइज बढ़ जाएगा स्कल का, लेकिन एडल्ट्स में क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो शीथ है, पेरी न्यूरल शीथ, उसमें सीएसएफ बढ़ेगा, तो ये आई बॉल तक पहुंच जाएगा। और आई बॉल में जो ये क्या नाम है, इसके अंदर आई बॉल में पीछे की तरफ द रेटिना का जो बेस होता है, वहां पे देयर विल बी बलूनिंग, और यू कैन से कि बल्जिंग ऑफ रेटिना एक्चुअली, और इडीमा ऑफ द रेटिना जो है वो दिखाई पड़ेगा। अगर हम उसको रेटिनोस्कोप से देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज एडिमा इन द आईलिड्स, उसको कहते हैं पेपिलिडीमा। तो पेपिलिडीमा इज अ साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक। पेरीवैस्कुलर स्पेस जो है, सीएसएफ कम्स इन कांटेक्ट विद नर्वस टिश्यू, नॉट द ब्लड सेल्स, ठीक है। तो सीएसएफ कम्स इन कांटेक्ट विद द नर्व टिश्यू, नॉट द ब्लड सेल्स। ब्लड या प्लाज्मा नहीं टच होता है न्यूरॉन से। अच्छा एक चीज और याद आ गई, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी था, which cranial nerve is most affected in case of increased intracranial pressure। intracranial pressure बढ़ रहा है तो
उस बंदे की कौन सी क्रेनियल नर्व पे तनाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी। नो, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के तो नर्व पे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा था। ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो पेरी न्यूरल शीथ थी उसमें सीएसएफ बढ़ता है, तो आईबॉल के अंदर सीएसएफ रेटिना को पुश करता है, तो दैट्स कॉल्ड पेपिलिडीमा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नर्व पे नहीं फर्क पड़ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि नर्व जब इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो एक नर्व खींचेगी, स्ट्रेचिंग आएगी, वो कौन सी नर्व है? वो याद रखना, इट इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, आकाश चौधरी। तो ठीक है, सिक्स cranial nerve याद रखना। सिक्स abducent nerve is the cranial nerve which is most commonly affected because of increased intracranial pressure। अब नर्व पे स्ट्रेच पड़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई बता देगा? एक बंदे को सिर दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और उसके बाद आपको क्या नाम है, सीएसएफ पंक्चर करके फाइंडिंग्स मिल गई, फाउंड आउट की दिस को इंटरक्रेनियल प्रेशर सीएसएफ का बढ़ा हुआ है। लेकिन हम एक क्लिनिकल साइंस पूछना चाह रहे हैं, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से कैसे पता चलेगा? इट इज करेक्ट, जिन लोगों ने बता दिया है, मंजीत, प्रिया रानी, सबने बता दिया है, आकाश, कि इंटरक्रेनियल इट इज द सिक्स्थ नर्व इन वन। लेटरल आई मूवमेंट, शौर्यम सनी ने काफी दिमाग लगाया और सही बात बताई है कि उस बंदे की लेटरल आई मूवमेंट में दिक्कत आएगी। गुड। लेकिन हम उसको साइन कैसे बताएंगे? उसको कहते हैं, याद रखना, इसको कहेंगे इंटरनल टोसिस और इंटरनल स्क्विंट। इंटरनल स्क्विंट इसका जो है, तुमने बात सही कही शौर्यम सनी ने, कि जब एब्डूसेंट पे स्ट्रेच पड़ रहा है तो हमको अपना दिमाग उधर ही लगाना चाहिए ना। SO4 LR6 लेटरल रेक्टस की मसल है, नर्व है एब्डूसेंट नर्व। तो क्या होगा कि उस बंदे में इंटरनल स्क्विंट मिलेगा, यानी कि उसकी आंख जो है नाक की तरफ देखते हुए दिखाई देंगी, यानी कि बोथ द आई पीपल्स विल बी डिविएटेड ऑन द नेजल साइड, उसको कहते हैं इंटरनल स्क्विंट। ठीक है, तो इतनी सी बातें समझ में आ गई, थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट सारे बता दिए। इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व नर्व है एब्डूसेंट नर्व। फाइंडिंग क्या मिलेगी? इंटरनल स्क्विंट मिलेगा, है ना, अंदर की तरफ मीडियल स्क्विंट याद रखो। क्योंकि लेटरल रेक्टस जब पैरालाइज होगी तो भाई मीडियल रेक्टस खींच लेगी, तो फिर मीडियल स्क्विंट हो जाएगा नहीं। ठीक, अडक्शन ऑफ आईज कहते हैं मीडियल स्क्विंट को। ठीक है कीर्ति। So around अब functions में है, it forms cushions around the CNS, large blood vessel systems, pulsation। हाँ, एक और बात है कि अब इसमें ये pulsation कैसे होगा? एंटी ग्रेविटी तो ये भी चलेगा ना सब अरेक्नॉइड स्पेस में। CSF स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ है, और ड्रेनेज कहाँ होता है? सोचो, सुपीरियर सजाइटल साइनस तक पहुंचाना है। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में इसको पुशअप कैसे करा जाएगा CSF को ऊपर तक? तो उसके लिए याद रखना है कि जो बार बार बोला है कि सब अरेक्नॉइड स्पेस में सेरेब्रल वेसल्स होती हैं, सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज आर पल्सेटाइल, तो पल्सेटाइल चीज हमेशा एक रिगर्जिटेशन फ्लूइड में बना के रखती है। ठीक है, तो याद रखना दैट जो सिस्टर्न्स होते हैं, सेरेब्रल सिस्टर्न्स, इसमें इतनी सारी ब्लड वेसल्स हर सिस्टर्न में बता दी गई हैं। तो बिकॉज ऑफ द पल्सेशंस ऑफ द आर्टरीज, दे एक्चुअली प्रोपेल द CSF in the subarachnoid space. That is a mode of propulsion of CSF in the subarachnoid space. ठीक है, क्योंकि एक और बताएं, इन जितने भी डायग्राम तुमने देखे हैं, हमने ब्रेन का सुप्रोलेटरल सरफेस नहीं दिखाया। सुप्रोलेटरल सरफेस सबसे बड़ा सरफेस होता है, बाहर की तरफ की जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सुप्रोलेटरल सरफेस, वहां पे कोई दिखाई नहीं है, लेकिन वहां तक सबसे ज्यादा सेंसरी मोटर एरियाज वहीं पर हैं। तो वहां तक CSF कैसे पहुंचाया जाएगा? बिकॉज ऑफ दीज पल्सेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक, जो सिस्टर्न्स वहां पे नहीं दिखे थे, कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो, सिस्टर्ना मैग्ना हो गया, फिर ये ऊपर गए, यहाँ पे ग्रेट, यानी कि जहां पे ये पीनियल ग्लैंड है, याद रखना, उसी लेवल पे पीनियल ग्लैंड और ग्रेट सेरेब्रल वेन पे सिस्टर्ना एम्बियंस मिलेगा। फिर ये देखो, ये क्या है? ये सेप्टम पेलुसिडम है ग्रीन से, ये कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर भी डायलिटेशन है सबअरेक्नॉइड स्पेस का, एंड दैट इज कॉल्ड सुप्राकैलोसल सिस्टर्न। ठीक है, फिर लेमाइना टर्मिनालिस, दिस इज लाइक एंटीरियर मोस्ट टर्मिनल लेमाइना ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन जब होता है, उसके बाद एंटीरियर लेमाइना कहते हैं।
तो लेमाइना टर्मिनालिस के आगे भी सिस्टर्न होता है, दैट्स कॉल्ड सिस्टर्न ऑफ लेमाइना टर्मिनालिस। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा होता है, ऑप्टिक काइज्मा के आगे भी स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्री काइज्मेटिक सिस्टर्न। फिर सिस्टर्न ऑफ लेटरल सल्कस, ये वाला बताया मैंने, ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में बाहर है, यहाँ पे लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है, जिसकी वजह से ये अंदर दबाव जाता है। इसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, ठीक है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज अ कंटेंट ऑफ लेटरल सल्कस। फिर ये है पोस्ट काइज्मेटिक सिस्टर्न, ये देखो पोस्ट काइज्मेटिक सिस्टर्न भी है। फिर इंटरपेडेंकुलेटेड पेडेंकुलर सिस्टर्न है ये, सिस्टर्ना पॉन्टिस है, और ये लास्ट वाला भूल मत जाना, लंबर सिस्टर्न है ये। एक मिनट हो गया टाइम, अच्छा बस एक ये चीज है, ये देखो CSF MRI है, तो उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना तो आई गया अब तक, सिस्टर्ना मैग्ना, ये है पॉन्टिस, एम्बियंस, पॉन्टिस, सब तुमको पता है, इंटरपेडेंकुलर हो गया। तो अब एक चीज ये है जो फाइनली ये देख लो चलते चलते, ये तुमको बनाने को आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट। बस CSF फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज का अगर क्वेश्चन आता है, यू विल हैव टू डू द डायग्राम, वो कोरॉइड प्लेक्सस उसका वाला, और यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखोगे तुम सबसे पहले कि CSF बन कहाँ रहा है, मेनली इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू आ जाएगा वो थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में भी CSF बनेगा, फिर वो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में भी CSF बनेगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल से दो रास्ते हैं, एक तो वो सीधा नीचे चला जाए स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाएगा। दूसरा ये है फोरामेन ऑफ लुस्का एंड मेजेंडाई के थ्रू इट विल रीच द सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम, ठीक है, सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम में पीछे वाला रास्ता पकड़ेगा, यानी कि ऑक्सीपिटल रीजन में, और आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिस्टर्ना पॉन्टिस में, ठीक है, उसमें सर्कुलेशन होगा टेंटोरियल नॉच, यानी कि टेंटोरियल नॉच से नीचे रहता है सब टेंटोरियल कंपार्टमेंट। फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को बेथ करेगा, फिर सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिबेलम को एरेक्नाइड ग्रैनुलेशंस एंड विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और जाके सुपीरियर सैजिटल साइनस में खत्म हो जाएगा, मीन ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा रास्ता जो बताया था वो ये कहा था कि सब अरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्वाना, ये नीचे भी पहुंच रहा था, वहां से जाके वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक रास्ता ये भी एब्जॉर्प्शन का है। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, पेरीन्यूरल लिम्फेटिक, जो स्पाइनल नर्व्स इमर्ज करती हैं, और स्पेशली अराउंड, याद रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ, ये जो प्योर सेंसरी नर्व्स हैं, इनके अराउंड पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। कर दिया एडमिशन प्रिया रानी, जितने वेटिंग थे। Now look here, blood brain barrier is missing at, सब तरफ होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ जगह नहीं होता है, वो याद रख लेना। कोरॉइड प्लेक्सस पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, पीनियल ग्लैंड पे नहीं है, एंड हाइपोथैलेमस, दीज आर द 3 साइट्स जहां पे तुम्हें ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग हो सकता है या थिंड आउट हो सकता है। यहाँ की बहुत डेवलप्ड ब्लड ब्रेन बैरियर इन 3 जगह पे नहीं होता है, कोरॉइड प्लेक्सस, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक। ये लंबर पंक्चर करने की टेक्निक है, तुम्हें दिखाया है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, नी एल्बो पोजीशन में लिटार के हम फाइन को फ्लेक्स करते हैं L3 L4 में। एंड ये देखो, ये मैं कल बता रहा था, इन्फेंट्स में, बच्चों में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि L3 तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, तो उसमें सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। एंड ये क्या है, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना, ये वेंट्रिकल नहीं है, ये सिस्टर्ना मैग्ना है, यानी कि हाँ, पॉन्टोमेडुलरी सिस्टर्न से भी ड्रेन कर सकते हैं। ये देखो L3 L4 से मैंने बताया था ना, ये तरीका है CSF ट्रैप का। और एक ये, सॉरी, ये देखो, ये जो हमने बताई थी बात, ये वाली भी एक नीडल दिख रही है, ये जो नीडल है ये कॉर्डल एनेस्थीसिया या एनाल्जीसिया के लिए यूज कर सकते हैं। ये यहाँ से, कहाँ से मैंने बताया था, सेक्रल हाइटस से पास करेंगे, चूंकि S2 के लोअर बॉर्डर पे ये डूरा और एरेक्नॉइड टर्मिनेट करते हैं, तो यू कैन पास नीडल हेयर सेक्रल हाइटस से, तो यहाँ पे डाल देंगे तो वही रूट्स ऑफ द शियाटिक नर्व को हम बेथ कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखो नॉर्मल वेंट्रिकल्स जो है, अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो वेंट्रिकल्स का शेप ये आ रहा है, ठीक है, कोई भी सीटी एमआरआई कर लेंगे। और उसके बाद ये हाइड्रोकेफेलस, ये कौन सा हाइड्रोकेफेलस है? दिस इज हाइड्रोकेफेलस इंटरनस, यानी कि सिंथेसाइजिंग एपरेटस से सिंथेसिस बढ़ गई है तो अंदर से डायलिटेशन होगा वेंट्रिकल्स का, ठीक है। और इस केस में क्या दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा है वेंट्रिकल्स तो डायलेटेड हैं कंपेयर टू द नॉर्मल, वेंट्रिकल्स तो डायलेटेड हैं, लेकिन व्हाट एल्स यू फाइंडिंग इज द सेरेब्रल सल्काई, ये जो सल्काई इन गायरी वाला है ना सल्काई, ये सल्काई भी डायलेटेड हो गए हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसमें ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हुआ है। जब ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो जाएगा तो सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलिक्स एक्स वैक्यू या हाइड्रोकेफेलस इंटरनस एक्सटर्नस, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना, ये हाइड्रोकेफेलस इंटरनस है, जिसकी वजह से क्या होता है इनफेंसी या न्यूबॉर्न में क्या होता है कि ये कंजेनाइटल, ऑफ कोर्स जब कंजेनाइटल होगा कि ब्लॉकेज्ड है, यानी कि ड्रेनेज एपरेटस या सिंथेसाइजिंग एपरेटस बड़ा हुआ है, तो हेड काफी बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नॉर्मल वेंट्रिकल्स इसमें दिखाए हैं, इस वाले में थोड़ा सा इमेज इसमें नहीं क्लियर आ रही है, लेकिन डायलेटेड वेंट्रिकल्स होते हैं हाइड्रोकेफेलस इंटरनस में। एक्सटर्नस में भी, बस एक्सटर्नस में क्या होता है, अब ये एमसीक्यूज नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, तो अटेंडेंस लगा दें तुम लोग अपनी। इसी